સુપ્રભાત મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ. સ્વાગત છે તમારું બધાનું નવા વિડીયોની અંદર. અત્યારે હું છું ઉદયપુર, રંગીલા, રાજસ્થાનના ઉદયપુર સિટીની અંદર. તો આજથી આપણે ઉદયપુર સિટી એક્સપ્લોર કરવાનું ચાલુ કરીએ છીએ. ટોટલ ઉદયપુરની અંદર આપણે 3 થી 4 દિવસ રોકાવાના છે. તો 3 થી 4 દિવસની અંદર અલગ અલગ પ્લેસીસ, બધા ટુરિસ્ટ પ્લેસીસ આપણે કવર કરી અને આખી ઉદયપુર સિટી એક્સપ્લોર કરવાના છે. મારી હોટલ હતી સવારનો વ્યૂ કંઈક આ રીતનો છે. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કુલ્લર ચા અને પાવા બટાકા. અત્યારે આપણે બ્રેકફાસ્ટ કરીએ છીએ અને બ્રેકફાસ્ટ કરી અને સીધા આપણે કરણી માતા ટેમ્પલ વિઝિટ કરવા માટે જઈશું. તો ચાલો આપણે બ્રેકફાસ્ટ કરી લઈએ અને મળીએ આગળ વિડીયોની અંદર. જોઈ શકો છો મિત્રો, કરણી માતા ટેમ્પલ અમે પહોંચી ગયા છે. તો કરણી માતા મંદિર જવા માટે મિત્રો તમે સીડી ચડીને પણ જઈ શકો છો. તો હું તમને સીડીવાળો રસ્તો બતાવું. આ છે કરણી માતા મંદિર. સીડીથી તમે જઈ શકો છો. તે માર્ગ તમે જોઈ શકો છો. એક માર્ગ રોપવેનો છે અને એક આ માર્ગ છે તે સીડી ચડીને તમે, જો રોપવેથી ના જવું હોય તો સીડી ચડીને પણ તમે જઈ શકો છો. તો અમે લોકો રોપવેથી જઈશું, તો રોપવે પણ તમને બતાવીએ. તો મિત્રો આપણે રોપવેની ટિકિટ લઈ લીધી છે. આ રીતના કંઈક ટિકિટ છે, એટલે કે 2 મોટાની અને 1 બાળકની. તો હવે આપણે રોપવે તરફ જઈ રહ્યા છે. તો ચાલો હવે રોપવે તમને બતાવું અને રોપવે વ્યૂ એન્જોય કરાવું. તો આ રીતના આપણે રોપવેમાં બેસવાનું છે હવે. તો આ રીતના હવે આપણે ધીરે ધીરે હાઈટ ઉપર જઈ રહ્યા છે. રીતના રોપવે मंशापूर्ण एंजॉय कर सको છો. में आपका हार्दिक स्वागत है. कृपया केबिन के अंदर खड़े ना होवे तथा केबिन में पहले रहे तो घबराए नहीं, कुछ देर में पुनः शुरू हो जाएगी. दरवाजे पर लटकना या बाहर झांकना खतरनाक हो सकता है. આ રીતના ઉદયપુર સિટીનો વ્યૂ તમને જોવા મળે છે અહીંથી. केबिन में गंदगी ना फैलाए. આખા ઉદયપુર સિટીનો વ્યૂ તમને અહીંથી જોવા મળે છે. તો આપણે કરણી માતા મંદિર તરફ જઈ રહ્યા છે. હવે રોપવેથી આપણે પગથિયા ચડી અને ઉપર માતાજીના મંદિર તરફ જવાનું છે. તો અહીંયાથી ઉદયપુર સિટીનો વ્યૂ તમે જોઈ શકો છો. કરણી માતાજીના દર્શન તમે કરી શકો છો. આ રીતના કંઈક સેલ્ફી પોઈન્ટ બનાવેલો છે કરણી માતા મંદિરથી. આ રોપવેથી આપણે હમણાં આવ્યા હતા અને ઉદયપુર સિટી. અત્યારે ફોગી વાતાવરણ છે. કરણી માતા ત્યાં મંદિર વિઝિટ કરીને આવી ગયા છે. હવે આ એક વ્યૂ પોઈન્ટ બનેલો છે જ્યાંથી ઉદયપુર સિટીનો વ્યૂ દેખાય છે. તો આ વ્યૂ પોઈન્ટ પરથી તમને વ્યૂ બતાવું. अपने टिकट को संभाल कर रखें. केबिन में गंदगी આ न રીતના फैलाए. વ્યૂ જોતા જોતા નીચે ઉતરી જઈએ. चलो गाइस, हम आ चुके हैं
જોઈ શકો છો આ રીતના બધા ઘાટ બનેલા છે. આ છે લેક પિત્તોલા, આનું નામ છે લેક પિત્તોલા. અને આ રીતના કંઈક વ્યૂ પોઈન્ટ બનેલા છે, ઘાટ બનેલા છે. તો અમે અત્યારે આવી ગયા છે ગુલાબ ગાર્ડન વિઝિટ કરવા માટે. અને આ પાર્કિંગ છે અને આ તમે વાંદરાઓ જોઈ શકો છો. અત્યારે કરણી માતા મંદિર વિઝિટ કરીને આવી ગયા છે. હવે ગુલાબ ગાર્ડન વિઝિટ કરવા માટે જઈએ છે. તો આ રીતના કંઈક રસ્તો છે. બર્ડ પાર્ક વિઝિટ કરવા માટે અહીંયાથી ટિકિટ અમે લઈ લીધી છે. મિત્રો ગુલાબ ગાર્ડનની અંદર આપણે બર્ડ પાર્ક વિઝિટ કરી લીધું છે. હવે બર્ડ પાર્કમાં આપણે બધા અલગ અલગ બર્ડ્સ જોયા. ગાર્ડન બહુ મોટું છે પણ સમયના અભાવથી આપણે બહુ એટલું બધું વિઝિટ કરવા નથી રહ્યા. તો ઉદયપુર તમે ફરવા આવો તો તમારે બાઇક રેન્ટ માટે બાઇક પણ મળી જાય છે. તો સિઝનેબલ પ્રાઇસની અંદર તમને બાઇક રેન્ટ પર જોઈતી હોય તો અહીંયાથી તમે બાઇક રેન્ટ પર લઈ શકો છો અને પૂરું ઉદયપુર ફરી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો સિટી પેલેસ વિઝિટ કરવા માટે આવી ગયા છે. અને આ ટિકિટ છે 2 એડલ્ટ અને 1 બાળક. ટોટલ 950 રૂપિયા કોસ્ટ પડી છે. તો હવે વિઝિટ કરીએ સિટી પેલેસ. પાછળ જોઈ શકો છો ઉદયપુર સિટી પેલેસનો એન્ટ્રી ગેટ છે. તો અત્યારે આપણે ઉદયપુર સિટી પેલેસને વિઝિટ કરવાના છે. તો ઉદયપુર सिटी पैलेस તમને વિઝિટ કરાવશો. सवेरे का जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। अभी आप मेरे साथ राजस्थान का सबसे बड़ा राजमहल देखने जा रहे हैं, जिसको बनाने की शुरुआत की थी महाराणा प्रताप के फादर उदय सिंह जी ने। उदय सिंह जी ने सिटी का फाउंडेशन दिया 1559 में। तो सिटी का नाम रखा गया बहन जी उदयपुर। उदय नेम ऑफ द किंग एंड पुर मीन्स टाउन, सिटी को कहते हैं। फाउंडेशन इन्होंने दे दिया। ये सभी राजाओं का रूलिंग टाइम पीरियड है। महाराणा प्रताप जब इनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे 25 साल तक शासन किया। 25 ही साल तक कंटिन्यूस अकबर से फाइट किया। तो इन्होंने इस राजमहल में कोई चीज़ नहीं बनाई। तो धीरे धीरे ये 22 राजाओं के फ़ोटो लगे हुए हैं। 22 राजाओं ने इस बिल्डिंग को कंप्लीट कराया 450 साल में। अभी उदय सिंह जी के बाद 25वां वंशज ये हैं
ये उदयपुर के राजा हैं डॉक्टर श्री जी लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़। 40 साल की उम्र है। 2 राजकुमारियाँ, एक राजकुमार साहब है जो पीछे रहते हैं, लेकिन इनका बिजनेस है होटल का। आपने जो अभी पैसा दिया है ये किसी के प्राइवेट फंड में नहीं जाता है, ये जाता है पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में। अब थोड़ा सा आगे आप आ जाएं। श्रीनाथ जी मंदिर से आगे हल्दी घाटी का ऐतिहासिक मैदान है। श्रीनाथ जी मंदिर उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर है। ये युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का 18 जून 1576 में, 18 जून 1576 में। उस समय उस घाटी के युद्ध के मैदान में 2 सेनाएं आमने सामने हुई थी। अकबर लड़ाई करने नहीं आया। अकबर ने अपने सेनापति जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह को चीफ कमांडर बनाकर भेजा और चेतक हॉर्स के ऊपर है महाराणा प्रताप सिंह। अब आप देखिए, जैसे ही चेतक हॉर्स ने जंप किया, हाथी की सूंड में तलवार है। हाथी ने एक पीछे वाला पांव चेतक घोड़े का काट डाला। 3 पांव से घोड़ा नीचे उतरा। आश्चर्य करेंगे, 3 पांव का घोड़ा महाराणा प्रताप सिंह को लेकर युद्ध के मैदान में रहा। महाराणा दोनों हाथ से युद्ध करते रहे, तलवारें चलाते रहे। सनसेट के समय घोड़ा बाहर निकलता है, 3 पांव से बनास नदी जंप करता है। प्रताप को सुरक्षित बचाने के बाद घोड़े की मृत्यु होती है। और भाई साहब, इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप सिंह की विजय हुई थी। अब महाराणा प्रताप सिंह की ओरिजिनल लोहे की ड्रेस है, लोहे का टोप, स्पीयर यानी भाला, 2 तलवार, बख्तर जिसको कवच भी कहते हैं। इन सब का मिलाकर टोटल वेट है 35 किलोग्राम। तो बिग एलिफेंट कभी कभी इसको बेबी एलिफेंट समझकर अटैक नहीं करेगा। बिग एलिफेंट बेबी एलिफेंट समझकर अटैक नहीं करेगा, इसीलिए घोड़े सूंड लगाते थे। अब आओ इधर आओ। महाराणा प्रताप की 2 बड़ी शील्ड है, ढाल है, धनुष बाण, 2 बड़ी तलवार है। इस बड़ी तलवार को या तो पट्टा कहेंगे या खांडा कहेंगे। ये गुप्ती है और ये सिर फोड़ने का काम करता गुरज हथियार है। लेकिन दुनियावी हथियार जो आप देख रहे हो ना, ये 22 राजाओं का कलेक्शन है। एक बहुत ही एक्सपेंसिव मैं आपको बताऊंगा। ये ओरिजिनल शील्ड है जिस पे आज भी करोड़ों रुपए के ओरिजिनल डायमंड लगे हुए हैं। गोल्ड के हैंडल की तलवारें हैं। उदयपुर फेमस है लेडीज़ के लिए या तो कुंदन की ज्वेलरी, या आर्टिफिशियल या रियल। और एक कुंदन की ज्वेलरी के साथ होता है बेटा मीनाकारी। ये मीनाकारी है, सिल्वर के ऊपर मीनाकारी है। ये बेटा इधर देखो, आप लोग आगे आओ। ये अंग्रेजों के समय के रिवॉल्वर हैं। ये इंग्लिश रिवॉल्वर है 5 शॉट, जो आप भी हिंदी पिक्चरों में, इंग्लिश पिक्चरों में देख सकते हो। ये अपने देशी कट्टे हैं। ये उत्तर प्रदेश कभी नए लगाए हैं महाराणा भूपाल सिंह जी। 1955 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये इनके राजकुमार साहब थे। महाराणा भगवत सिंह जी, इंदिरा गांधी का जो मर्डर हुआ ना, उसके 3 दिन बाद इनकी मृत्यु हुई थी, 3 नवंबर 1984 में। लेकिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व के अंदर विश्व हिंदू परिषद का संगठन किया, और जब तक जिंदा थे उसके अध्यक्ष यही रहे, वो अशोक सिंघल। ये अभी 2025 में इनकी मृत्यु हुई थी और ये इनके राजकुमार नए राजा बने। डॉक्टर साहब श्री लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ जो पीछे रहते हैं, अपने के दर्शन करके ऊपर आओ मंदिर के। बेहतर हो आगे ऊपर। दादा इधर आ जाओ। थे भोजराज, जिनकी वाइफ थी मीराबाई जो कृष्ण की भक्ति करती। तो बहन जी और बाबूजी आप मीराबाई के ससुराल में खड़े हुए। लेकिन मीरा के जितने मंदिर हैं, जितने महल हैं, वो उदयपुर से 112 किलोमीटर दूर है चित्तौड़ में, क्योंकि मीराबाई उस समय वहाँ रहती थी। उदय सिंह जी तो बाद में इधर आए। अब उदय सिंह जी जब इधर आते हैं तो सबसे पहले इस मंदिर के अंदर एक साधु महात्मा मिलते हैं। उनका नाम था गोस्वामी प्रेमगिरी जी। उनके आशीर्वाद से 1559 में बिल्डिंग का फाउंडेशन यहाँ से दिया। बाबूजी और बहन जी इसको कहते हैं राज्य आंगन, या राजाओं का राजतिलक होता था।
के लिए हवन कुंड बनाते हैं, उसको धूणी कहते हैं। तो ये साधु की धूणी कहलाती है। एक ही पत्थर है मार्बल का, इसमें जॉइंट वगैरह नहीं है, लेकिन ये बाथ टब नहीं, क्योंकि नीचे साधु महात्मा का मंदिर बना हुआ है। जब नया राजा बन जाएगा उसका राजतिलक होगा, इसमें 1 लाख रुपए के चांदी के सिक्के भरेगा। सिक्के भरने के बाद वो उस कुर्सी पर बैठेगा, पब्लिक पीछे खड़ी रहेगी और वहाँ से वो 1 लाख रुपए के सिक्के पब्लिक में लुटाएगा जब वो राजा बनेगा। अब यहाँ हुआ आगे आओ। ये पुराने समय का ईमेल और इंटरनेट ऑफिस है। पुराने समय में ट्रेंड कबूतरियाँ रखते जो चिट्ठी लाने और ले जाने का काम करते थे। ये 4th फ्लोर पे, इट इज़ 4th फ्लोर। 4थी मंजिल पे आप इतने बड़े वृक्ष लगे हुए देख रहे हैं छत पे, तो छत पे इतना बड़ा वृक्ष नहीं लग सकेगा। यहाँ लगा हुआ इसका कारण है कि राजमहल बन रहा था, बीच में आता पर्वत यानी पहाड़। राजा ने पहाड़ को रहने दिया, उसके ऊपर वृक्ष लगे हुए थे। कमरे बनाने शुरू किए पर्वत के चारों तरफ। तो बहन जी वो तो पर्वत है, नथिंग इज देयर। अपन खड़े हुए यहाँ कमरे बने हुए हैं। और वो राजा का स्विमिंग पूल है। कभी होली फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे जागीरदारों के साथ, कभी रानियों के साथ। तो ये जगह सिर्फ होली खेलने के काम में आती थी। महाराणा साहब श्री जी डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह जी मेवाड़, उदय सिंह जी के बाद वो 25th यानी 25वीं पीढ़ी में आते हैं। 21वीं पीढ़ी में आते थे महाराणा फतेह सिंह जी। बाऊजी और बहन जी, फतेह सिंह जी की डेथ हुई थी 1930 यानी 1930 में। आप आश्चर्य करेंगे कि इन्होंने 1930 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई दरबार अटेंड नहीं किया, क्योंकि मेवाड़ 1947 तक एक स्वतंत्र स्टेट थी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, 12 दिसंबर 1911, 12 दिसंबर 1911 अपने इंडियन हिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि उस दिन अंग्रेज़ों का ब्रिटिश एम्परर जो नाम था उसका जॉर्ज 5th दिल्ली आया, एक ही बार आया, और उसने भारत की राजधानी चेंज कर दी, कलकत्ता से दिल्ली रखा। हिंदुस्तान का हर राजा महाराजा नवाब उसका वेलकम करने के लिए खड़ा हुआ था। इनको इनविटेशन भेजा तो इन्होंने लिख कर भेजा कि मैं एक स्वतंत्र स्टेट का मालिक हूँ, मैं किसी विदेशी का कोई दरबार अटेंड नहीं करता। तो बाबूजी, अंग्रेज़ों ने इनके लिए कुर्सी लगाई जो खाली रहा, देश की आज़ादी के बाद वापस लौटाया। फिर जॉर्ज 5th ने इनको एक्सपर्ट और रेडलेट 2 घोड़े गिफ्ट में भेजे एज ए फ्रेंड। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे खूबसूरत कमरा, शीश महल कांच का कमरा। या नीचे देखेंगे आप, बहन जी आगे आओ। हमारे यहाँ जब भी महाराणा साहब का जन्मदिन होता था पुराने समय में, 2 एलिफेंट यहाँ फाइट करते थे। ये लंबा चौड़ा जो दीवार है, इसके अंदर एक हाथी होता रहा, एक बाहर होता। लेकिन वो कैसे फाइट करते मैं आपको यहाँ बताऊँगा। यहाँ आ जाए, ये अभी राजा हैं डॉक्टर साहब लक्ष्य राज सिंह जी मेवाड़। दीवार आपने देखी, हाथी अंदर और बाहर। ये दोनों हाथी जब सूंड पकड़कर खींचेंगे, खींचातानी में अगर इस हाथी का पांव दीवार से टच हुआ, यानी जिस हाथी का पांव दीवार से टच हो गया वो हार गया, और जो अपनी जगह से नहीं हिला वो जीत गया। स्कूल में बच्चों का खेल होता है रस्सा कस्सी का। ओके, अब आओ इधर।
अरे चलो भैया। अभी आपको बताया महाराणा फतेह सिंह जी के बारे में। बहन जी, अपने भारत में आज भी बहुत सी जगह घूंघट में औरतें नज़र आती, पर्दा सिस्टम बहुत होता था पुराने समय में, तो बहुत होता। रानी कभी भी फेस टू फेस किसी को देख नहीं सकती। अगर उसको बाहर देखना है तो उसके लिए 150 साल पहले ऐसे लूवर्स बनते हैं। यहाँ से रानी बाहर देखेगी, बाहर का आदमी अंदर में। अपन लोग नीचे आ गए। इसको कहते हैं मोती महल, रानियों का कमरा था ये, उनका सिटिंग रूम था। अर्ली द मॉर्निंग रानी आती, नीचे कारपेट पे बैठेगी, राजा सामने चेयर पे बैठ के बातचीत करेंगे। बिफोर इलेक्ट्रिसिटी एक दासी खड़ी रहेगी और रस्सी खींचेगी जिससे वो लाल कलर का कपड़े का पंखा चलेगा। ये हाथी दांत का दरवाज़ा देखें आप, डेकोरेशन के लिए लगाया है। मनोरंजन के लिए, रानियों के लिए शतरंज खेलने की जगह है। राजा वहाँ बैठ के विजिट करेंगे। रानियों का ड्रेसिंग और मेकअप रूम, उन्हीं का झूला है। ये कलर वगैरह सब नया किया है। अच्छा, अभी दिवाली पे नया किया। आओ इधर आओ। भी रहना पर अच्छा है। और 1940 में इन्होंने लिफ्ट। अब बारिश के समय, मानसून के समय, जब राजा को रियल सूरज नारायण के दर्शन नहीं होंगे तो ये गोल्ड प्लेटेड है, करीब 108 तोला सोना लगा हुआ है। यहाँ राज परिवार दर्शन करता, पब्लिक बाहर ग्राउंड के अंदर खड़ी होकर दर्शन करती। वो सूरज मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपका मोबाइल कैमरा दे दो मुझे। अच्छा, बहन जी के पास है। बहन जी, वो कैमरा मुझे दे दो ऑन करके, स्टिल फोटोग्राफी में। आ जाओ, आप इधर आ जाओ, फिर आपका लेते हैं। चल रे। यहाँ बैठेंगे लेडीज़, यहाँ घूमर डांस करेगी। महारानी साहिबा कभी इधर और कभी इधर, रानियाँ खड़ी रहेगी। इसको मोर चौक पिकॉक कोर्टयार्ड कहते हैं। पूरा कांच का काम है, कोई भी पेंटिंग नहीं है। बैग लिया, पूरा कांच का काम। महल देख के आगे आपको मालूम नहीं पड़ा। वो जो 3 दरवाजे हैं वह हाथियों की लड़ाई करने की जगह देखी। अच्छा। ये चौथी मंजिल पे आपने बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए देखे। हाँ। ये राजा रानी का बेडरूम का झरोखा कांच का। 3 ब्राउन खिड़कियां हैं, ये पेंटिंग्स रूम देखा। छोटा शीशा लगा हुआ या केरोसिन का फैन देखा। ये बाबूजी चाइनीज स्टाइल जहाँ से उदयपुर देखा आपने। ये नीचे रानियों की बैठक और डाइनिंग रूम जहाँ से अपन नीचे आए। बाबूजी आदमी खड़े हुए, यहाँ सूर्य प्रकाश गैलरी है। अपन यही सोच अंदर गए थे। मैंने नहीं कहा सूर्य प्रकाश गैलरी दीवाने आम और दीवाने खास बताया। वो लिफ्ट वाला विंडो, उसके नीचे सूर्य मंदिर देखा। वो बाहर जो सूर्य है वो पब्लिक के लिए, अंदर राज परिवार के लिए। और ये ग्लास पिकॉक बने हुए देखे। अब घर में बहन बेटी की शादी होती, केले के वृक्ष का, उसके पत्तों का एक मंडप बनाते हैं। राजघराने में 2011 में सेकंड राजकुमारी साहिबा का लगन हुआ था गुजरात के अंदर। संतरामपुर के राजकुमार साहब डॉक्टर कुश सिंह जी परमार के साथ। तो ये चांदी का मंडप बना था। शादी हो गई, महाराणा साहब ने ट्रस्ट को डोनेट कर दिया ताकि आप लोग विजिट कर सकें। 2011 13 से और इतना चांदी ना पंखा पहले ना जमाना झुम्मर चांदी ना પહેલાના જમાનાનો મેકઅપ બોક્સ રાણીઓનો આ રીતના રાણીઓ પાસે પણ મેકઅપ બોક્સ રહેતા હતા પહેલાના જમાનામાં। ये मेकअप का सामान है क्या? हाँ, ઘોડા ઉપર આ રીતના ચાંદીથી શણગારવામાં આવતો હતો।
તો સિટી પેલેસની અંદર આપણે હરેક વસ્તુ ગાઈડ સાહેબે આપણને સમજાવી, આપણે જોઈ. તો સિટી પેલેસ જોવાની જો તમને મજા આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. હવે આપણે સિટી પેલેસ વિઝિટ કરી લીધું છે, તો હવે આપણે જગ મંદિર તરફ આગળ વધીએ નેક્સ્ટ ડેસ્ટિનેશન માટે. મારી પાછળ તમે જોઈ શકો છો, આ છે જગદીશ મંદિર. હવે સિટી પેલેસ આપણે વિઝિટ કરી આવ્યા છે અને આપણું નેક્સ્ટ ડેસ્ટિનેશન છે આ જગદીશ. આ છે મિત્રો જગદીશ મંદિર. ભગવાન જગદીશના દર્શન કરી શકો છો તમે. તો મિત્રો આ ઉદયપુર વિઝિટનો પહેલા દિવસનો વિડીયો હતો, જે તમને સવારની અંદર આપણે કરણી માતા મંદિર બતાવ્યું, ત્યાર પછી ગુલાબબાગ અને બર્ડ વિઝિટ કરાવ્યું, ત્યાર પછી જોઈ રહ્યા છો એ ગણગોર ઘાટ છે. એ ગણગોર ઘાટ પરથી આજે પહેલા દિવસ ઉદયપુરનો આપણે આ વિડીયો અહીંયા આગળ એન્ડ કરીએ છીએ. તો નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર બીજા દિવસની અંદર તમે આપણા આગળના જે બાકી રહી ગયેલા ટુરિસ્ટ પ્લેસીસ છે તેને વિઝિટ કરીશું. તો ચાલો મળીએ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર અને નવા ટુરિસ્ટ પ્લેસીસની અંદર ઉદયપુરથી લાઈવ. તો વિડીયોને જોતા રહો, સબસ્ક્રાઈબ કરો ચેનલને અને તમારા દોસ્તારો, તમારા ફેમિલી સાથે ગ્રુપની અંદર વિડીયો શેર કરો.